माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछे गए सवाल का धन्यवाद करता हूं। जब से हमारी सरकार आई है तब से हमने रेल सुरक्षा में काम शुरू कर दिया। 2008 से 13 तक तकरीबन 1164 रेल हादसे हुए, पर जब हमारी सरकार आई तो हादसों में 34% की घटोतरी देखी गई। पहले हमारा बजट था 1 लाख करोड़, पर अब हमारा बजट है 2,55,000 करोड़। हम इन रुपयों का पूरा प्रयोग लोगों की सुरक्षा और रेल कवच में करेंगे। हमारी सरकार ये दावा देती है कि रेल कवच पूरी तरीके से काम करेगा। हमारी सरकार देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में कुछ हादसे हुए, हमें उन हादसों का बहुत दुख है, और जिन लोगों की इन हादसों में मृत्यु और उनको हानि पहुंची, हमने उनसे संपर्क किया और उनके परिवार वालों से संपर्क किया और उन्हें कुछ माफी मुआवजा दिया। पर हमारी सरकार अब ये दावा करती है कि ऐसे हादसे अब भारत में नहीं होंगे, और जहां तक रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड बनेंगे पर भारत में हादसे ना होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 by Miss Akansha. Honorable Speaker Ma'am, through you, I want to ask a question from Honorable Education Minister. सोचा था कभी न पढ़ेंगे हम, तो किस बात का है कि अभी पढ़ ही तो रहे हैं हम। On May 5, 24 lakh aspirants took the NEET exam. 4 जून को परिणाम घोषित होने पर अनियमितताएं सामने आई। बिहार में कम से कम 4 लोगों ने पेपर लीक करने की बात कबूल की। The exam results showed 67 candidates scoring a perfect 100%. सिर्फ नीट ही नहीं बल्कि PCS और UGC नेट के पेपर भी लीक हो गए। The other students who gave exams for honesty and get cheated. Some students take the wrong steps like suicide and causes depression. The governments only do re-exams which causes wastage of time. वे पेपरों की तैयारी में महीनों लगा देते हैं और पेपर लीक जैसी दुर्घटनाएं कई नुकसान का कारण बन सकती है। जैसे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है और उनकी योजनाएं गड़बड़ा सकती है, जिससे उन्हें प्रेरणा की कमी होती है और वे अपने प्रयासों के नुकसान से नाराज हो सकते हैं। The Indian government has introduced the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 to address paper leaks and cheating in public exams. Instead of the paper are leaked and such wrong practices continue. Recently, in our Indian capital Delhi, Rao's IS Study Circle में बाढ़ त्रासदी से 3 छात्रों की मौत के रूप में अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्हें मेरे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि। ऐसे संस्थानों द्वारा दिशा निर्देशों के उल्लंघन को रोकने में दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण अब तक सिर्फ कोचिंग संस्थान के CEO और अन्य अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। Is this sufficient? Why such incidents are recurrent? Honorable Speaker Ma'am, I would like to put forward this issue to the Minister of Education as to what provisions did the government make so far to curb such practices. Do government give the guarantee of no such wrong practices in future? Honorable Education Minister, please. Honorable members of the Assembly, esteemed colleagues, I rise today to address a matter of significant concern and importance to the recent breach of NEET, National Eligibility cum Entrance Test examination paper. This incident has not only compromised the integrity of our most critical examination paper, but has also distressed to students and their families. As the Education Minister, I assure you that we take this issue with a seriousness and are committed to ensure that such type of incidents do not reoccur. First and foremost, let me express my profound disappointment over this breach. NEET examination is a concern stone for students aspiring to enter the medical field, and any type of compromise in its integrity is unacceptable. Our education system prides itself on its meritocracy and fairness transparency. Thank you. Question number 103 by Miss Priya. Honorable Speaker, through you, I would like to ask a question to Finance Minister.
मैं यहाँ लाखों मिडिल क्लास नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपसे सवाल करने आई हूँ, जो हमारी वर्तमान टैक्स प्रणाली से बेहाल हो चुके हैं। हम ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं और देश की राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, फिर भी सबसे भारी टैक्स का बोझ हमारे ऊपर भी है और बदले में सबसे कम फायदे मिलते हैं। हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो तरह तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। जीएसटी से लेकर रजिस्ट्रेशन फीस तक एक 10 लाख की गाड़ी की कीमत 17 से 18 लाख तक पहुंच जाती है और जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर भी भारी टैक्स लगता है। हम जब सड़क पर चलते हैं तो हमें टोल देना पड़ता है। हमारी तनख्वाह पर भी कड़ी मार पड़ती है। हमारी सैलरी सीधा टीडीएस के रूप में कट जाती है, जो हमारी नेट सैलरी को कम कर देता है। और बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। हम जब ग्रोसरी और अन्य जरूरी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर भी 18% का टैक्स लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के रूप में। मतलब जीने की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी भारी टैक्स देना पड़ता है। और जब हम थोड़ी बचत कर इन्वेस्ट